हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 338A। 338A कल मैंने पढ़ा था 338 एंड 337। कल मैंने बताया था अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है उसके बारे में। आज मैं पढ़ूंगी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में, संविधान का अनुच्छेद 338A के बारे में। तो चले पढ़ें। चलिए ठीक है। 338 आर्टिकल ए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये दोनों अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं SC ST के लिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों के लिए, उन पे होने वाले उत्पीड़न, उनके लिए ये काम करता है। पूरे देश भर में SC ST पर होने वाले अत्याचार, एट्रोसिटीज़ जितने भी घटित होती हैं, या फिर सरकारी दफ्तरों में, सरकारी ऑफिसेज में कहीं भी किसी भी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार होता है, भेदभाव होता, अत्याचार होता है, उसके साथ जघन्य अपराध होता है, तो उसके लिए क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो आज मैं पढ़ूंगी 338 का अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है, इसका गठन कैसे होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसके कार्य क्या हैं, और इन सब के बारे में आज मैं बताऊंगी। तो ठीक है, स्टार्ट करें। कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 338A, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुच्छेद 338 का नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 338A, National Commission for Scheduled Tribes. Number 1, there shall be a commission for the scheduled tribes to be known as National Commission for the Scheduled Tribes. Number 2, subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the commission shall consist of a chairperson, vice chairperson, and 3 other members, and the conditions of service and tenure of office of the chairperson, vice chairperson, and other members so appointed shall be such as the president may by rule determine. Number 3, the chairperson, vice chairperson, and other members of the commission shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal. Number 4,
The Commission shall have the power to regulate its own procedure. Number 5, it shall be the duty of the Commission, number A, to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the scheduled tribes under this Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the government, and to evaluate the working of such safeguards. Number B, to inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and the safeguards of such scheduled tribes. Number C, to participate and advise on the planning process of the socio-economic development of the scheduled tribes and to evaluate the progress of their development under the union and any state. Number D, to present the president annually and at such other the times as the commission may deem fit reports upon the working of those safeguards. Number E, to make in such reports recommendations as to the measures that should be taken by the union or any state for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the scheduled tribes. And number F, to discharge such other functions in relation to the protection, welfare and development and advancement of the scheduled tribes as the president may, subject to the provisions of any law made by parliament by rules specified. Number 6, the president shall cause all such reports to be laid before each house of the parliament along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the union and the regions for the non-acceptance, if any of such recommendations. Number 7, where any such report or any part thereof relates to any matters with which any state government is concerned, a copy of such report shall be forwarded to the governor of the state, who shall cause it is to be laid before the legislature of the state along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the state and the regions for the non-acceptance, if any of such recommendations. Number 8, the commission shall, while investigating any matter referred to in subclause A or inquiring into any complaint referred to in such clause B of clause 5th, have all the powers of a civil court trying a suit, and in particular in respect of the following matters, namely: number A, summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and the examining him on oath. Number B, requiring the discovery and production of any document. Number C, receiving evidence on affidavits. Number D, requisitioning any public record or copy thereof from any court or office. Number E, issuing commissions for the examination of witnesses and documents. F, any other matter which the president may by rule determine. Number 9, the union and every state government shall consult the commission on all major policy matters affecting scheduled ट्राइब्स। तो ये था इंग्लिश में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
भारत का संविधान का अनुच्छेद 338A जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 338 का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भारत के आदिवासी जो हैं यानी ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए, भारत की सबसे बड़ी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उसी से सारी कम्युनिटीज़ का निर्माण होता है। तो भारत की सबसे पुरानी जो इंडिजिनस पीपल्स ऑफ इंडिया हैं वो भारत के आदिवासी ही हैं यानी ट्राइबल्स हैं। तो उनके लिए उन पर जब अत्याचार होता है देश के किसी भी कोने में तो वहाँ से कंप्लेंट्स आती हैं उन अत्याचारों के खिलाफ। SC STs को न्याय दिलाने के लिए उनकी जांच पड़ताल होती है। तो उसके लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये SC और ST समुदायों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338A। तो इसको ध्यान में रखते हुए ज़रूर पढ़ें लोग, ताकि अपने अधिकारों के बारे में तो जान सके कि हमारा एक राष्ट्रीय नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड नेशनल कमीशन फॉर STs के लिए, तो वो लोग अपने इस कमीशन के बारे में ज़रूर जानें। राष्ट्रीय लेवल पर उनका एक आयोग भी है तो उसके बारे में ज़रूर पढ़ें। हाँ, सभी कुछ लोग कहते हैं कि ये बिना दांतों वाला है, ये कुछ नहीं कर सकता, रिकमेंडेशंस ही भेज सकता है सिर्फ। लेकिन जब सरकार में बैठे लोग वो भी उनकी विल पावर नहीं है इम्प्लीमेंटेशन इसको पूरी तरह से करने की, तो इसीलिए SC ST के जो वर्गों के लोग हैं उन पे अत्याचार होता है, घटनाएं रुकती नहीं हैं और उसका जो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन जो भी होते हैं वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो सरकार होती है, सरकार का तो वैसे महत्वपूर्ण एक अंग है SC ST कमीशन। पर होता क्या है, जब अलग विचारधारा की जब सरकारें होती हैं उन्हीं के लोग जब अत्याचार करते हैं इन जातियों के ऊपर तो उनको न्याय नहीं मिल पाता है। और यदि अच्छे लोगों की सरकार होगी जो जिनके अंदर न्यायिक चरित्र होता है, चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोग हों या फिर जुडिशरी में बैठे हुए लोग हैं, अगर उनके पास न्यायिक चरित्र है, उनका जो चरित्र सोशल जस्टिस के लिए है, तो उनको सोशल जस्टिस मिलेगा। उन जातियों को, उन वर्गों को जो अत्याचारी लोगों के अत्याचार से पीड़ित हैं, और ये पीड़ाएं ऐसी हैं जाति के आधार पर उनको मारा जाता है, जान से मार दिया जाता है। यहाँ तक कि अभी पानी नहीं छू सकते हैं सवर्ण जाति का। ऊंची जाति जो अपने आप को प्रो सवर्ण कास्टिस्ट मानते हैं वो लोग, बहुत सभी तो नहीं, कुछ लोगों की विचारधारा ऐसी है कि मेरा बर्तन छू जाने से भी हम अपवित्र हो जाएंगे। तो ये छुआछूत की भावना, अनटचेबिलिटी के आधार पर, जाति के आधार पर बहुत सारे लोगों का मर्डर होता है। इतने सारे हीनियस क्राइम्स जो घटते हैं वो सब जाति व्यवस्था के आधार पर होते हैं। और ये जाति व्यवस्था के जो स्रोत हैं वो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथों में, मनुस्मृति, वेद, पुराण, गीता, रामायणा, इन सभी में ये भावनाएं हैं अनटचेबिलिटी की। तो ये अनटचेबिलिटी की जो क्रूरतम, जो प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी है वो इनके धर्म ग्रंथों में है। तभी बाबा साहब ने किताब लिखी थी एक बहुत महत्वपूर्ण, उसको भी पढ़ना चाहिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उच्छेद। उसको आप पढ़ें। उन्होंने उसके जो जाति के जो स्रोत हैं वो कहाँ बताए हुए हैं, जो ह्यूमैनिटी पे क्रूअलिटी करते हैं वो हैं जितने भी ब्रह्मिकल जो टैक्सेस हैं, ब्रह्मिकल जो टेक्सटेट हैं, माइथोलॉजिकल जो भी टेक्सटेस हैं, उनमें सारी चीज़ें भरी हुई हैं। उनके जो भी साहित्य हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनमें एक वर्ग या जो शूद्र क्लास है उसके खिलाफ क्या भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में। तो उन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को या तो
बायकॉट करना चाहिए जनता को, या उन पे सवाल उठाना चाहिए, या उनमें सुधार करना चाहिए? ये सारी विधियां हैं, उसमें क्या करना चाहिए? तो सबसे बड़ा हमारा संविधान है, तो संविधान में सभी विधियों का निचोड़ है कि संविधान क्या कहता है। उनके आर्टिकल्स को पढ़ें और भाईचारे से सभी लोग रहें। तो अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ। दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।